بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم سابقہ پاکستان اور دریاؤں کا ملک یعنی بنگلہ دیش کی طرف جا رہے ہیں۔ محل وقوع کے اعتبار سے بنگلہ دیش کی کچھ مختصر سی سرحدیں برما یعنی میانمار کے ساتھ جڑی ہیں اور 3 اطراف سے بھارت سے ملا ہوا ہے، اور جنوب میں اس کی سرحدیں خلیج بنگال سے ملتی ہیں۔ بھارت کی ریاست کو ملا کر بنگالی اسے اپنا نسلی وطن کہتے ہیں۔ بنگلہ دیش کا مطلب ہے بنگال کا ملک یا بنگالیوں کا وطن۔ خطہ بنگال متحدہ ہندوستان کا سب سے بڑا صوبہ تھا۔ تاریخ میں اس خطے کا پہلی دفعہ ذکر سلطنت بنگا 1000 سال قبل مسیح کے نام سے ہے۔ پھر یہ علاقہ پہلے بدھ مذہب اور پھر ہندو مذہب کے زیر اثر رہا۔ دہلی کی سلطنت قطب الدین ایبک کے جرنیل بختیار خلجی نے 1202 میں بنگال پر حملہ کیا اور بنگال و بہار کو فتح کیا۔ اس فتح سے نہ صرف بنگال میں مسلم دور حکومت کا آغاز ہوا بلکہ اسلام کی اشاعت بھی شروع ہوئی۔ 14ویں صدی میں بنگال پر شاہی بنگلہ کے نام سے جاننے والے مسلمان سلطانوں نے حکومت کی۔ 1532 میں شیر شاہ سوری بنگال کا حکمران بنا۔ 1576 میں مغل شہنشاہ اکبر نے بنگال کے پشتون حکمران داؤد خان کرانی کو شکست دی۔ بنگال مغل سلطنت کا صوبہ بنا۔ مغل دور میں بنگال کے گورنر کو صوبے دار کہا جاتا تھا۔ ناظرین، اس دوران بنگال میں کئی ایک چھوٹی ہندو ریاستیں بھی موجود تھی۔ ہندو بادشاہ ہیمو کی مختصر حکمرانی کے علاوہ بنگال 1575 سے اورنگزیب کی وفات تک مغل حکمرانوں کے تابع رہتے ہوئے اندرونی طور سے خود مختار رہا۔ واسکو ڈے ماگا یعنی پرتگالی سیاح نے 1498 میں یورپ سے ہندوستان تک کا سمندری راستہ دریافت کیا۔ اس کے بعد پرتگالی تاجر بنگال تک پہنچنے لگے۔ بنگال کے نواب نے پہلے 1673 میں فرینچ ایسٹ انڈیا کمپنی کو چندری ناگور میں اور پھر 1690 میں برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کو کلکتہ میں تجارتی مراکز کھولنے کی اجازت دی۔ 1727 میں گورنر مرشد قلی خان کی وفات کے بعد غیر یقینی صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مرہٹوں نے بنگال پر پے در پے حملے کیے اور اڑیسہ کے علاوہ بنگال کے چند علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل کرانے میں کامیاب رہے۔ 1757 میں سراج الدولہ کو جنگ پلاسی میں شکست دینے کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کو صوبہ بنگال میں مالیہ کی وصولی کے اختیارات مل گئے۔ 1765 میں صوبہ بنگال بشمول بہار اور اڑیسہ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ 1770 میں بنگال شدید قحط کا شکار ہوا جس میں لاکھوں لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ 1773 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے تحت انگریز حکومت کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ بنگال کے شہر کلکتہ کو برطانوی ہندوستان کا دارالحکومت قرار دے کر وان ہیسٹنگ کو پہلا گورنر جنرل نامزد کیا گیا۔ انگریزوں کے زیر قبضہ ہندوستانی علاقوں کو 3 حصوں یعنی چنئی، ممبئی اور بنگال پریزیڈنسی میں تقسیم کیا گیا۔ ناظرین، 1947 میں تقسیم ہندوستان کے وقت صوبہ بنگال کو 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا۔ بنگال کا مسلم آبادی والا مشرقی حصہ موجودہ بنگلہ دیش پاکستان کا صوبہ بنا۔ 1955 میں 1 یونٹ اسکیم کے تحت مغربی پاکستان کے تمام صوبوں کو ملا کر ایک صوبہ بنا دیا گیا۔ اس طرح ملک کے 2 صوبے بنے، ایک مشرقی پاکستان اور دوسرا مغربی پاکستان۔ آزادی کے کچھ عرصے بعد ملک کے دونوں حصوں میں بد اعتمادی کی فضا پیدا ہوئی، جس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان میں آزادی کی تحریک چلی اور آخر کار 1971 میں ہندوستان کی مداخلت سے مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے جدا ہو کر بنگلہ دیش بن گیا۔ بنگلہ دیش کی موجودہ سرحدیں 1947 میں تقسیم ہند کے موقع پر وجود میں آئیں، جب یہ پاکستان کے مشرقی حصے کے طور پر برطانیہ سے آزاد ہوا۔ پاکستان کے دونوں مشرقی و مغربی حصوں کے درمیان 1600 کلومیٹر یعنی 1000 میل کا فاصلہ حائل تھا۔ علیحدگی کے باوجود بنگلہ دیش کے لوگوں کے دلوں میں آج بھی پاکستان سے محبت نظر آتی ہے۔ بنگلہ دیش اپنے قیام سے مستقل سیاسی افراتفری کا شکار ہے۔ اب تک 73 مختلف حکومتیں برسر اقتدار آ چکی ہیں اور کم از کم 4 مارشل لا ہو چکے ہیں۔ بنگلہ دیش آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 7واں بڑا ملک ہے اور تقریباً 1,44,000
1000 मुरब्बा किलोमीटर के ये रकबे के लिहाज से दुनिया का 94वां बड़ा मुल्क है। दुनिया का गुंजान आबाद तरीन आबादी के हामिल ममालिक में से एक है, बल्कि अगर छोटे मोटे जज़ायर या शहरी हुकूमतों को फहरिस्त से निकाल दिया जाए तो ये दुनिया का सबसे ज्यादा गुंजान आबादी वाला मुल्क बन जाता है, जिसके हर मुरब्बा किलोमीटर पर 998.6 या हर मुरब्बा मील पर 2629 अफराद बसते हैं। ये तीसरा सबसे बड़ा मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है। जोग्राफियाई एतबार से ये दरियाए गंगा और बरहमपुत्र के जरखेज दिहानों पर वाक़े है। मानसून की सालाना बारिशों के बायस यहाँ सैलाब और तूफान मामूल हैं। इस्लाम बांग्लादेश का रियासती मजहब है। बांग्लादेश आईन मजहब की आज़ादी की जमानत देता है और कतई नजर मजहब के तमाम बांग्लादेशी शहरियों को मुसावी बुनियादी हुकूक देता है। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक मुसलमान कुल आबादी का 90%, जबकि हिंदू 8.5 और 1% दीगर मजाहिब के लोग हैं। बांग्लादेश में सिर्फ इस्लाम, हिंदू मत, मसीहियत और बुद्ध मत मजाहिब पाए जाते हैं। बांग्ला या बंगाली बांग्लादेश में बोली जाने वाली अहम ज़बान है और इसे सरकारी ज़बान की हैसियत हासिल है। 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था और उसकी पहचान मशरकी पाकिस्तान के तौर पर थी। उर्दू को यहाँ की मकामी बंगाली ज़बान की तरह सरकारी हिमायत हासिल थी। ताहम 1971 के बाद के वाक़यात के बाद जब ये मुल्क वजूद में आया, उर्दू ज़बान को यहाँ की पहचान से मुतसादिम समझा गया और यहाँ की बिहारी आबादी जो उर्दू गो है गैर शहरी समझा गया। मौजूदा दौर में उर्दू दां आबादी की तादाद 4 लाख बताई गई है। अब आपको बांग्लादेश के कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ बताने जा रहे हैं जो कि अब से पहले आपने शायद न सुने हों। नाजरीन, इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नए आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल के बटन को जरूर दबाइए। बांग्लादेश की GDP 195.1 बिलियन डॉलर है। बांग्लादेश में बंगाली कौम 98% रहती है, बाकी 2% दूसरी कौमें हैं। बांग्लादेश में 90% मुसलमान आबादी है। बांग्लादेश की कौमी ज़बान बंगला या बंगाली है। बांग्लादेश की आधी से ज्यादा आबादी काश्तकारी का काम करती है। इस्लाम इक़्तिदार को मलहूज रखने के लिए बंगाली हर काम सीधे हाथ से करना पसंद करते हैं, जबकि कोई भी अच्छा काम बाएं हाथ से करना उनके लिए बुरा समझा जाता है। बांग्लादेश में रोजाना 2000 से ज्यादा अखबारात और जरायद निकलते हैं। बांग्लादेश में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला खेल क्रिकेट है। बांग्लादेश में 6 मुख्तलिफ शिद्दत के साथ मौसम पाए जाते हैं और साल भर रहने वाला मौसम बारिश का है। खलीज बंगाल पूरी दुनिया का सबसे बड़ा खलीज माना जाता है। बांग्लादेश पूरी दुनिया में आबादी के लिहाज से 8वां सबसे बड़ा मुल्क समझा जाता है। ढाका बांग्लादेश का दारुल हुकूमत और मुल्क का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। बांग्लादेश के साहिल पर पाया जाने वाला बाजार बीच दुनिया का तवील तरीन समंदरी साहिल माना जाता है। पूरे मुल्क में 700 दरिया बहते हैं, इसलिए बांग्लादेश को दरियाओं का मुल्क भी कहा जाता है। एशिया के 3 सबसे बड़े दरियाए गंगा, दरियाए मेघना, दरियाए ब्रह्मपुत्रा बांग्लादेश से ही बहते हैं। बांग्लादेश के 67% जमीन काश्तकारी के काबिल है। चावल और मछली बंगालियों की मरगूब तरीन ग़िज़ा है जिसे वो बड़े शौक से खाते हैं। पूरी दुनिया के 3% चाय बांग्लादेश से आती है और इस इंडस्ट्री में 4 मिलियन लोग काम करते हैं। रॉयल बंगला टाइगर बांग्लादेश का कौमी जानवर है। महास्थानगढ़ बांग्लादेश का कदीम तरीन शहर है। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका को दुनिया के बड़े बड़े शहरों में शुमार किया जाता है और इसे मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है। बांग्लादेश में आलीशान तारीखी और सियाहती मकामात तूफानों और सैलाबों की वजह से तबाह हो चुके हैं। यहाँ हर मुरब्बा मील में 3000 अफराद रहते हैं, जो कि इस मुल्क को सबसे ज्यादा गुंजान आबादी वाला मुल्क कहलवाता है। यहाँ हद से ज्यादा सैलाब आते हैं और अपने साथ ऐसी जरखेज मिट्टी लाते हैं जो कि काश्तकारों के लिए सोना मानी जाती है। कबड्डी बांग्लादेशियों का कौमी खेल है और इस खेल में बंगालियों ने कोई भी उसूल कायम नहीं किया। बांग्लादेश में कुल 17 हवाई अड्डे हैं। बंगाली लोग मुस्कुराते नहीं हैं, इसलिए नहीं कि वो दोस्ताना ताल्लुक नहीं चाहते, बल्कि इसलिए कि मुस्कुराहट बंगालियों में एक बचगाना हरकत समझी जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा साहिली
जंगल बांग्लादेश में वाक़ है। जैक फ्रूट यानी कटहल बांग्लादेश का कौमी फ्रूट माना जाता है। 1970 में बांग्लादेश की तारीख का सबसे बड़ा तूफान आया था, जिस वजह से 5 लाख बाशिंदे लुक़्मा-ए अजल बन गए थे। पोहिला बोशक बंगाली सकाफत का अजीम त्योहार समझा जाता है। ये बंगाली नए साल का जश्न के तौर पर भी मनाते हैं। बांग्लादेश में पाया जाने वाला सुंदर डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा दरियाई डेल्टा माना जाता है। बंगाली करेंसी को टका कहा जाता है। बांग्लादेश में 17 बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, जिसे बंगाली कौम की तालीमी मेयार का पता चलता है। बांग्लादेश की 10% जमीन जंगलात पर मबनी है। देही इलाकों में औरतों को तालीम नहीं दी जाती। बांग्लादेश में हर साल 60 इंच बारिश होती है और मानसून में पाकिस्तान में होने वाली बारिशें खलीज बंगाल से ही आती हैं, जो कि पाकिस्तान के शुमाली इलाकों पर असरअंदाज होती रहती हैं। बांग्लादेश एक ऐसा मुल्क है जिसे सैलाबों ने हद से ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, लेकिन उसके साथ साथ सैलाबी मिट्टी ने जमीन को जरखेज बना दिया है, जिससे अपनी अवाम ने ज़राअत में जबरदस्त फायदा पहुंचाया है। अगरचे सैलाबों ने इसकी बहुत सारी तारीखी मकामात तबाह कर दिए हैं, लेकिन इस मुल्क में अब भी सकाफत और तारीख बाकी मौजूद है। दोस्तों, अगर ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।